ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਨਰੇਟਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਉਸੇ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਨਵੋਲੂਸ਼ਨ ਆਪਰੇਸ਼ਨ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਨਵੋਲੂਸ਼ਨ ਨਾਮ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਮੈਥਡ ਮੈਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੇਮ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਨਵੋਲੂਸ਼ਨ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਸਪੋਜ਼ ਐਸ ਐਂਡ ਟੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਸੀਕੁਐਂਸ ਨੇ, ਦੈਨ ਕਨਵੋਲੂਸ਼ਨ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਫॉर ਸੀਕੁਐਂਸ ਐਸ ਐਂਡ ਟੀ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਦੇ ਆ ਐਸ ਸਟਾਰ ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਐਸ ਸਟਾਰ ਟੀ ਆਫ ਐਨ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਸਮੀਸ਼ਨ ਆਰ 0 ਟੂ ਐਨ ਤੱਕ। ਮੀਨ ਜੋ ਇੱਥੇ ਐਨ ਐਸ ਸਟਾਰ ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਐਨ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਮੀਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਆਰ 0 ਟੂ ਐਨ ਤੱਕ। ਐਸ ਆਫ ਆਰ ਟੀ ਐਨ ਮਾਈਨਸ ਆਰ ਮੀਨਸ ਫਸਟ ਵਾਲੀ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸ ਆਰ ਲਗਾਉਣਾ, ਐਂਡ ਜੋ ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਲੀ ਸੀਕੁਐਂਸ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਨ ਮਾਈਨਸ ਆਰ ਲਿਖਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਪॉप ਆਪਰੇਸ਼ਨ। ਇਸ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਐਸ ਕੋਈ ਸੀਕੁਐਂਸ ਹੈ ਦੈਨ ਪॉप ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਔਨ ਐਸ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਡਿਨੋਟ ਬਾਈ ਐਸ ਅੱਪਰ ਐਰੋ ਦੇ ਨਾਲ, ਐਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਪਰ ਐਰੋ ਲਗਾ ਕੇ, ਅਤੇ ਡਿਫਾਈਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਐਸ ਆਫ ਅੱਪਰ ਐਰੋ ਨਾਲ ਐਨ ਲਗਾਇਆ। ਮੀਨਸ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਰੋ ਲੱਗੂ nth ਟਰਮ ਕਾਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜੂਗੀ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੀ ਐਸ n + 1th ਟਰਮ 'ਚ, ਮੀਨਸ ਇੱਕ ਅਗਲੀ ਟਰਮ ਮਿਲ ਜੂਗੀ ਸਾਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਪੁਸ਼ ਆਪਰੇਸ਼ਨ। ਪੁਸ਼ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਐਸ ਕੋਈ ਸੀਕੁਐਂਸ ਹੈ, ਦੈਨ ਇੱਥੇ ਪੁਸ਼ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਪੁਸ਼ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਔਨ ਐਸ ਇਜ਼ ਡਿਨੋਟਡ ਬਾਈ ਐਸ, ਉਹਨੂੰ ਡਾਊਨ ਐਰੋ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਐਸ ਡਾਊਨ ਐਰੋ, ਐਂਡ ਡਿਫਾਈਨਡ ਐਜ਼ ਐਸ ਡਾਊਨ ਐਰੋ ਐਨ। ਉਹ ਡਿਫਾਈਨ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊ ਕਿ ਅਗਰ n ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 0 ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ n ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ n ਸਾਡੇ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਹੀ ਨੇ। n ਅਗਰ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਐਸ ਪੁਸ਼ ਨਾਲ n ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਇੱਕ ਪਿਛਲੀ ਟਰਮ ਮਿਲੂਗੀ, ਮੀਨਸ ਐਸ n ਮਾਈਨਸ 1 ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਮਿਲੂਗੀ। ਅਗਰ n ਆਇਆ ਤਾਂ n ਮਾਈਨਸ 1 ਵਾਲੀ ਟਰਮ, ਅਗਰ n ਮਾਈਨਸ 1 ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ n ਮਾਈਨਸ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਟਰਮ n ਮਾਈਨਸ 2 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਬਟ ਅਗਰ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਖੁਦ ਹੀ 0 ਹੋਈ ਤਾਂ ਆਂਸਰ 0 ਆਊਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪੁਸ਼ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ। ਨੈਕਸਟ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਐਸ ਅਗਰ ਸੀਕੁਐਂਸ ਹੈ ਨੰਬਰਸ ਦੀ ਦੈਨ ਐਸ ਪॉप ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਮੀਨਸ ਐਸ ਅੱਪਰ ਐਰੋ ਇਨਟੂ ਐਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਐਸ ਅੱਪਰ ਐਰੋ n ਮਾਈਨਸ 1 ਇਹ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਨਾਲ ਫਿਰ ਅੱਪਰ ਐਰੋ ਅਗੇਨ ਐਸ ਅੱਪਰ ਐਰੋ ਇਨਟੂ ਜੋ n ਸੀ ਉਸ 'ਚ ਇੱਕ ਮਾਈਨਸ n ਮਾਈਨਸ 1 ਹੋ ਗਿਆ, ਐਂਡ ਫਿਰ ਅੱਪਰ ਐਰੋ ਅਗਰ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 1। ਪਰ ਅਗਰ n ਖੁਦ 1 ਹੈ ਤਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਐਸ ਅੱਪਰ ਐਰੋ 1 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਸ ਅੱਪਰ ਐਰੋ, ਐਂਡ ਐਸ ਡਾਊਨ ਐਰੋ ਮੀਨਸ ਪੁਸ਼ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਐਸ ਡਾਊਨ ਐਰੋ n ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਆ ਐਸ ਡਾਊਨ ਐਰੋ n ਮਾਈਨਸ 1 ਇੰਟੂ ਫਿਰ ਪੁਸ਼ ਆਪਰੇਟਰ। ਬਟ ਅਗਰ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 1 ਹੈ, ਅਗਰ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਹੈ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਆਊ ਸਾਡਾ ਐਸ ਪੁਸ਼ ਆਪਰੇਟਰ ਇੰਟੂ 1 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਸ ਪੁਸ਼ ਆਪਰੇਟਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਹੈ ਜੋ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਣ ਕੇ ਆਊਗਾ ਸਾਡਾ ਕਿ ਐਸ ਅਪ ਆਪਰੇਟਰ ਪॉप ਆਪਰੇਟਰ 3 ਹੈ, ਮੀਨਸ ਇੰਟੂ ਨਾਲ n ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਈ ਜੋ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਐਸ ਪॉप n ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਸ n ਮਾਈਨਸ 1 ਇੰਟੂ ਅੱਪਰ ਐਰੋ ਵਾਲਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਅਗਰ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 1 ਹੈ। ਇੱਥੇ 3 ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੀਨਸ 3 का ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਐਨ 3 ਮਾਈਨਸ 1 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਸੇਮ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅਗੇਨ ਐਸ ਅੱਪਰ ਐਰੋ 2 ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਮੀਨਸ ਇਹ 'ਚ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2 ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਤੀ ਇੱਥੇ, ਬਾਕੀ ਦੋਨੋਂ ਜੋ ਅੱਪਰ ਐਰੋ ਸੀ ਉਹ ਸੇਮ ਰਹਿ ਗਏ। ਅਗੇਨ ਫਿਰ ਐਸ ਅੱਪਰ ਐਰੋ 1 ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਐਸ ਅੱਪਰ ਐਰੋ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੀਨਸ ਐਸ ਅੱਪਰ ਐਰੋ 1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਿਰ ਐਸ ਅੱਪਰ ਐਰੋ ਪੁੱਟ ਕਰਤੀ, ਅਗੇਨ ਆਹ ਵਾਲਾ ਅੱਪਰ ਐਰੋ ਸੇਮ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਅਗੇਨ ਆ ਵੀ ਸੇਮ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਈ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕਿ ਐਸ ਅੱਪਰ ਐਰੋ n ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਐਸ n + 1 ਤੇ, ਮੀਨਸ ਉਹ ਫਸਟਲੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ n ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਅੱਪਰ ਐਰੋ ਆ ਉਸ 'ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ n + 1। ਫਿਰ ਜੋ ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਲਾ ਅੱਪਰ ਐਰੋ ਆ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ n + 1 का ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਊਗਾ n + 2 'ਚ। ਫਿਰ ਆਹ ਵਾਲਾ ਅੱਪਰ ਐਰੋ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਐਸ n + 2 का ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਐਸ n + 3 'ਚ। ਮੀਨਸ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਐਸ ਅੱਪਰ ਐਰੋ 3 ਇੰਟੂ n ਉਹ ਜੋ n ਅਤੇ 3 ਦਾ ਸਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੀਨਸ ਐਸ n + 3 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਨ ਜਰਨਲ ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਸ ਅੱਪਰ ਐਰੋ n ਇੰਟੂ m ਇਹ m + n ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਮੀਨਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਸ ਆਫ m + nth ਟਰਮ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। ਸੇਮ ਐਸ ਪੁਸ਼ ਆਪਰੇਟਰ n ਇੰਟੂ m ਅਗਰ m ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜੋ ਆ ਬਾਹਰ ਪਿਆ
जो भी चीज़ बाहर होगी अगर वो वैल्यू लैस दैन एन हुई तो आंसर 0 आऊगा, अगर एम की वैल्यू ग्रेटर दैन इक्वल टू एन हुई तो एस एम माइनस एन हो जाएगा। मीन जो बाहर टर्म पई है माइनस जो अंदर टर्म पई है वो आएगा। दैन कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट ने ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ क्वेश्चनों ਦੇ ਵਿੱਚ डायरैक्टली अप्लाई करांगे, याद करने पैणगे कि जनरेटिंग फंक्शन फाइंड करना एस प्लस टी सीक्वेंस का। वो की करो कि एस सीक्वेंस का जनरेटिंग फंक्शन फाइंड कर लो, फिर टी का जनरेटिंग फंक्शन फाइंड कर लो, दोनों ऐड कर लो। बट अगर कोई सीक्वेंस है जिस नाल कोई कॉन्सटेंट मल्टीप्लाई होया गया उसका जनरेटिंग फंक्शन फाइंड करना, सिंपल उस सीक्वेंस का जनरेटिंग फंक्शन फाइंड कर लो, बाद जो आंसर आया कॉन्सटेंट मल्टीप्लाई कर दो। थर्ड रिजल्ट क्या कि कन्वोल्यूशन का जनरेटिंग फंक्शन किमें फाइंड करना, एस स्टार टी का जनरेटिंग फंक्शन किमें फाइंड करना, एस का जनरेटिंग फंक्शन एंड टी का जनरेटिंग फंक्शन फाइंड करके दोनों मल्टीप्लाई कर दो। फोर्थ रिजल्ट है कि अगर एस अपर एरो मीनस एस पॉप ऑपरेशन का जनरेटिंग फंक्शन फाइंड करना है, वो की होगा कि एस का जनरेटिंग फंक्शन फाइंड करो माइनस एस ऑफ जीरो मीनस जीरो तो टर्म माइनस करनी है डिवाइडिंग बाई जेड। दैन फिफ्थ रिजल्ट की है कि जनरेटिंग फंक्शन फाइंड करना है एस पुश ऑपरेटर का, वो की आऊगा कि जेड मल्टीप्लाई हो जाऊगा नाल जो एस का जनरेटिंग फंक्शन आऊगा। सेम अगर जनरेटिंग फंक्शन फाइंड करना हो एस पुश ऑपरेटर एन कॉमा जेड का, मीन सीक्वेंस एस पुश ऑपरेटर एन का जनरेटिंग फंक्शन फाइंड करना हो तो जिन्ना इतने एन लिखा वो जेड की पावर च आ जाऊगा, नाल जनरेटिंग फंक्शन कली एस सीक्वेंस का फाइंड हो जाएगा। सेम लास्ट रिजल्ट है कि जनरेटिंग फंक्शन फाइंड करना एस पॉप ऑपरेटर एन कॉमा जेड दे, वो की करो कि एस सीक्वेंस का जनरेटिंग फंक्शन फाइंड करो जिन्ना इतने एन लिखा हो, दैन समीशन जीरो तो शुरू होकर वो एन माइनस वन तक जाऊगा, मीनस अगर इतने 3 होंदा तो वो 3 माइनस वन तक मीनस 2 तक समीशन चलूगा। एस ऑफ आर जेड की पावर आर डिवाइडिंग बाय जेड है, मीन जिन्ना इतने एन है उन्नी जेड की पावर होगी, तो समीशन एक घट वारी चलूगा तो जीरो तो शुरू होगी। दैन क्वेश्चन करते हैं तो सारे रिजल्ट ने वो अपलाई होंगे। मीन एस एन सानू सीक्वेंस दी हुई है एन स्क्वेयर प्लस वन एंड टी एन सीक्वेंस दी हुई है एन प्लस 4। असी एस स्टार टी फाइंड करना मीनस कन्वोल्यूशन फाइंड करनी है। हम पता एस स्टार टी किमें डिफाइन करते हैं आर जीरो टू एन, जो इतने एन लिखा जाता उत्थे तक समीशन चलूगा। फस्ट नाल एस आर आऊगा तो सैकेंड नाल टी एन माइनस आर लिखा जाऊगा। हुण एस एन की वैल्यू कितनी है एन स्क्वेयर प्लस वन, तो एस आर की वैल्यू की होगी एन की जगह तो आर रिप्लेस कर देंगे आर स्क्वेयर प्लस वन बन जाऊगा। एंड टी एन माइनस आर की वैल्यू की होगी इतने टी एन की जगह तो असी एन की जगह तो एन माइनस आर लिख देंगे। दैन इनू सिंपल आर स्क्वेयर प्लस वन मल्टीप्लाई करना, पहला एन प्लस 4 ना मल्टीप्लाई किया, फिर आर स्क्वेयर आर ना मल्टीप्लाई किया आर क्यूब आ गया, फिर एन प्लस 4 वन ना मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस आर वन ना मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने तो बाद समीशन सारे अलग अलग करते, मीनस ये बन गया समीशन आर जीरो टू एन एन प्लस 4 आर स्क्वेयर, फिर आर क्यूब नाल भी आ गया, फिर आर नाल भी आ गया, फिर एन प्लस 4 नाल भी आ गया। हुण समीशन चल रहा साडा आर ते आर जीरो टू एन, तो वो एन प्लस 4 कॉन्सटेंट है तो वह बाहर आ जाऊगा कॉन्सटेंट, समीशन बन गया आर जीरो टू एन आर स्क्वेयर। सेम इतने आर क्यूब उदा ही रह गया, ये भी उदा ही रह गया, इतने एन प्लस 4 भी कॉन्सटेंट है, समीशन आर ते चल रहा है तो इतने बन रहा जूगा। तो इन्हें समीशन ओपन किया आर जीरो टू एन तक, ये बन गया जीरो स्केयर प्लस वन स्केयर प्लस टू स्केयर थ्री स्केयर एन स्केयर। सेम क्यूब वाला ओपन किया जीरो क्यूब प्लस वन क्यूब प्लस टू क्यूब एन क्यूब। सेम ये वाला अप्लाई किया जीरो प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री एंड सोन एन तक। एंड लास्ट वाले समीशन जी की है कि वन ने किन्ने टाइम ऐड होना, पहला जीरो भरांगे फिर भी आंसर वन आना, फिर वन भरांगे तो भी वन आना आंसर, टू भरांगे तो भी वन आऊगा, मीनस इस तरह करते करते एन टाइम ऐड होगा वन है जोड़ा। उन्हें फार्मूले तुम प्लस वन च पढ़े हुए हैं कि वन स्केयर प्लस टू स्केयर थ्री स्केयर एन स्केयर का फार्मूला की होंगे एन इंटू एन प्लस वन टू एन प्लस वन बाई सिक्स, एन प्लस 4 उदा ही रह गया ना। माइनस क्यूब का फार्मूला वन क्यूब प्लस टू क्यूब प्लस एन क्यूब का फार्मूला होंगे एन इंटू एन प्लस वन बाई टू का होल स्केयर। सेम वन प्लस टू प्लस थ्री एंड एन का सम का फार्मूला होंगे एन इंटू एन प्लस वन बाई टू, एंड ये बन गया एन प्लस 4 वन 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 एन टाइम ऐड हो गए एन आ गया ना, उसे आंसर आ गया साडा। हुण फरदर असी की फाइंड करना सीगा, ये कन्वोल्यूशन का फाइंड करता, एस पॉप ऑपरेशन टू एन ये फाइंड करना, एंड टी पुश ऑपरेशन 4 ये फाइंड करना। दैन आ फार्मूले यूज़ करांगे असी आ वाला एस पुश पॉप ऑपरेटर एन जेट ये फार्मूला अप्लाई करो। बस इत्थे की है कि नेक्स्ट आ गया साडा
कि एस ਇਹਦਾ ਹੁੰਦਾ है कि एस पॉप ऑपरेशन m इंटू m, ये दोनों का समੀਸ਼ਨ हो जाऊगा n प्लस m, एंड m की वैल्यू साड़ी इत्थे 2 है, वो असी 2 पुट की, ये आंसर आ गया साडा n प्लस 2 का स्केयर प्लस 1, क्योंकि एस एन कितना सी n स्केयर प्लस 1, n की जगह तो n प्लस 2 पुट हो गया। सेम टी पुश ऑपरेटर 4, वो की होंदा कि इन्हां दोनों का डिफरेंस, बट कंडीशन ये है कि n ग्रेटर दैन होना चाहिए 4, ग्रेटर दैन इक्वल टू 4 तो होना चाहिए। दैन टी एन की वैल्यू साड़ी सी n प्लस 4, बट सानू टी n माइनस 4 की वैल्यू चाहिए है, n की जगह तो n माइनस 4 पुट कर देंगे उत्थे, ये आंसर आ गया। नैक्सट क्वेश्चन है कि अगर ए एन की वैल्यू n है, बी एन सीकुएंस ऑफ n/2 आंसर दे रही है, तो सी एन सीकुएंस ऑफ 2 रेज टू पावर n आंसर दे रही है, तो असी जनरेटिंग फंक्शन फाइंड करना है ए पॉप ऑपरेटर 2 कॉमा Z, तो जनरेटिंग फंक्शन फाइंड करना बी स्टार बी, मीन बी तो कॉन्वोल्यूशन का, एंड जनरेटिंग फंक्शन फाइंड करना 2C कॉमा Z का। ਅਸੀਂ ਆ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮੂਲੇਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹ ਅਪਲਾਈ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਆ ਕਨਵੋਲੂਸ਼ਨ ਤੇ ਐਸ ਸਟਾਰ ਟੀ ਵਾਲਾ ਅਪਲਾਈ ਹੋਊਗਾ, ਬਟ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੀ ਸਟਾਰ ਬੀ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਇਹ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਜੀ ਬੀ ਕੌਮਾ ਜ਼ੈਡ, ਜੀ ਬੀ ਕੌਮਾ ਜ਼ੈਡ, ਇਹ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਆਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਐਸ ਪॉप ऑपरेटर n कॉमा Z, n साडा इत्थे 2 होगा, तो इत्थे उस अकॉर्डिंग असीं वैल्यूज़ पुट कर देंगे सारियां, दैन वैल्यूज़ पुट कीतियां, जिमें आ फार्मूला होंदा कि जी ए पॉप ऑपरेटर n कॉमा Z, जी जनरेटिंग फंक्शन ए दा, एंड समੀਸ਼ਨ ਚੱਲੂਗਾ साडा R0 टू n-1, एक घट टाइम ਚੱਲੂਗਾ ਸਮੀਸ਼ਨ जिन्ना इत्थे n हैगा, AR Z पावर R ओवर Z की पावर n, दैन साडी n2 भरना सी, दैन वो वैल्यू n की 2 भरी, ये बन गया जनरेटिंग फंक्शन ए पॉप ऑपरेटर 2 कॉमा Z जी ए कॉमा Z माइनस R0 टू 2-1 AR Z पावर R ओवर Z स्केयर। उस तो बाद कैलकुलेशन ही है, जस्ट सिंपल कैलकुलेशन। हम समੀਸ਼ਨ पहला R की वैल्यू 0 पुट करांगे, ये बन जूगा A0 Z पावर 0, फिर R की वैल्यू 1 पुट करांगे, वो बन जू A1 Z पावर 1, दैन सॉल्व करके हम जनरेटिंग फंक्शन अगर n होवे तो असी पिछली वीडियो च फार्मूला किया सीगा जनरल फार्मूला कि अगर जनरेटिंग फंक्शन फाइंड करना है n का, तो वह की होंदा गा Z ओवर 1 माइनस Z का होल स्केयर, दैन वो जनरेटिंग फंक्शन की वैल्यू पुट करती, क्योंकि ए साडा इत्थे n सीगा, तो ये बनया साडा माइनस Z ओवर Z स्केयर। उस तो बाद जस्ट सिंपल एलसीएम लेना तो कैलकुलेशन करनी है, आंसर आ गया साडा। नैक्सट जी बी स्टार बी कॉमा Z, असी इंपॉर्टेंट फार्मूले च रिजल्ट किया है जी बी मीनस मल्टीप्लाई हो जाते दोनों, दैन बी की वैल्यू कितनी है साडी n/2 इंटू Z जी n/2, इस होल स्केयर बन गया। हुण असी आ फार्मूला जो अप्लाई किया ए एन की जगह तो इत्थे n सीगा, हुण कितना n/2 है, मीनस वो जो 1/2 है इत्थे नाल आ जाऊगा जनरेटिंग फंक्शन के, 1/2 नाल आ जाना, जिवें इत्थे कीता होया कि क्योंकि जनरेटिंग फंक्शन का रिजल्ट है कि कॉन्सटेंट बाहर आ जाता है, तो कॉन्सटेंट इत्थे 1/2 बाहर लिखता, एंड जी n कॉमा Z का जनरेटिंग फंक्शन की होंदा Z ओवर 1 माइनस Z का स्केयर, सारे का होल स्केयर आ गया, ये आंसर आया साडा। सेम और जी जनरेटिंग फंक्शन 2C कॉमा Z का फाइंड करना, 2 कॉन्सटेंट और बाहर आ जाऊगा, सिंपल असी सी सीकुएंस का जनरेटिंग फंक्शन फाइंड कर लाँगे, दैन वो फार्मूला अप्लाई किया, ए की वैल्यू साडी 2 है वो पुट करती असी इत्थे, दैन इस दे नाल ही तुहाडा ये सारा जनरेटिंग फंक्शन का टॉपिक कंप्लीट है।